Harihi Om. Om Sri Chinmaya Sadgurave. So, not only in the simple houses of the mortal, we see the working of Sanatana Dharma, but even in the palace of Yamaraja, Lord Death, there also Shastras are quoted and implicitly followed. So, Dharma is not for Bharat or India, Dharma for here. Dharma is immortal and it is to be followed to the house of mortal and to the house of death. That is why this mantra was very, very important. This is the mantra which enumerates the consequences one will have to live through as a result of one's deliberate insults to a man of knowledge and culture. Hopes and expectations are based in the life of one who insults a saintly guest. Asha means hope, means wish for something unknown, such as heaven and so on. And pratiksha is expectation, means looking forward to obtaining of a known object, such as material wealth, relationships, etc. So, a householder who insults a saintly guest is called by the Shruti as an Alpamedhasa, idiot. I think you can remember the mantra. Etad bringte purushasya yasnan anaswan vasati brahmano vihe. So, if today we find in our society more folks who ignore charity and hospitality, in the language of the Shruti, we are a generation of idiots. In the concept of Sanatana Dharma, a guest is an Atithi, Narayana, or an embodiment of God. Feeding the guest with Narayana Bhava is considered to be one of the five yagna, great sacrifice, which a householder has to perform daily for purposes of his future growth in the scales of his conscious evolution. तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व. तीसरा रात्रि, 3 nights. यद avatसिहि, you have dwelt, grihe, in the house, me, mine.
Anashnan, without taking food. From Anashnan, that Anashan came, In Bengali, it is called Anashan. Ashan means khana khana. Student or any political party, they quite a few times as a part of the protest 29 দিন অনশন 30 দিন অনশন এসব সব আছে না অনশনন without the food brahman o brahmana atithihi a guest namasyaha venerable namaha prostrations te means unto you astu be brahman o brahmana swasti good may to me astu means befall tasmat therefore prati in return for the 3 nights Treen, three, Varan, boons, Vreneshwar. You choose. So Yamaraja performed everything which his wife and relatives suggested. Means the water for washing feet and everything Yamaraj did because he is the follower of Dharma. He tried to please the Brahmana Atithi. He told, "O Brahmana, you are a venerable guest, has dwelt in my house 3 nights without any food. Therefore, I want to give you 3 boons. I want to compensate it. Please, please ask me 3 boons. My prostrations unto you. May good befall me." So, the spirit of the mantra is the true spirit in which the Aryans, the Arya, accepted and followed their immortal Sanatana Dharma. As a matter of fact, it is surprising that such a godly power as Mrityu Devata, Lord Death, himself should bow down in modesty in front of his guest. Maybe that guest is a boy, merely 9 years old, and beg of him to pardon the host's, indiscretion. This is the attitude of Sanatanis. Don't shout, "I am a Sanatani, I am a Sanatani, I am a Hindu, I am a Hindu." Let us be a good Hindu. Hindu means acceptance. Hindu means no violence. Hindu means no hatred. Hindu means begging apologies when it is required. Atithi should be treated as Narayan.
It doesn't depend on the age. Here, Natiketa is just 8 to 9 years old, and Yamaraja, Lord of the Death, because of him, his Atithi had to wait for him, and he did not eat anything else which is not good for the householders. आपके गृह में भी कोई आए, आप उन्हें ऐसे छोड़िए मत, एटलीस्ट एक गिलास पानी तो पिलाइए। गर्मी के मौसम में घर में कोई गैस देने आता है, ऑफर हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। और भी कितने सारे लोग, कितने सेल्समैन, मीन्स आई हैव noticed the same thing at my own home. That's why I can tell you. What about? So, there are days when the governors themselves outrageously step over their own laws. No one would have found fault with the Lord Death for having ignored a guest when he was himself not at home. And yet, herein we see that Mrityu Devata apologizing for his unintentional misconduct and begging the Brahmana boy, who is a guest, to accept in return an atonement, prayaschitta, in the form of three boons. If only men in power and might, men in position and status, were to be so straight in following the laws of dharma, dharma sutra, dharma ki niyam. Others, the lesser ones, would not have dared to disobey them at all. Here, there is also an undercurrent of compliment paid by Lord Death to the Brahmana boy. May good befall me is a request which has been already sanctioned by the guest even before the householder has asked for it. Since a highly cultured man of intellect and heart, a true Brahmana, is always won over by humble prostrations and due reverence shown. It is not the one to nourish a grudge for even an insult expressly shown. So, उन्होंने बताया क्या, हे ब्राह्मण, तुम मेरा अतिथि हो, तुम नमस्य हो, तुम प्रणम्य हो, प्रणाम करने की योग्य हो तुम।
यमराज देवता है और मृत्यु की देवता, जिसके लिए हमें हमारे सबका फिक्र है। मृत्यु 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 मृत्यु। ना तो हम हमारे नियर एंड डियर की चाहते हैं, और ना हम मरना चाहते हैं। यही तो आश्चर्य की बात है। और उसी मृत्यु देवता के पास जब एक बच्चा छोटा ब्राह्मण गया, उनको भी मृत्यु देवता प्रणाम कर रहे हैं। तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, नमस्ते, नमः ते। ये जो बोलते हैं ना हिंदी में, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मतलब नमः ते। इट्स अ संस्कृत वर्ड, नमा, नमः ते, दैट इज नमस्ते। इट्स अ संस्कृत वर्ड। आपको प्रणाम। स्वस्ति में अस्तु, तुम्हारा आशीर्वाद में मेरा कल्याण हो। स्वस्ति में अस्तु मीन्स आपकी आशीर्वाद में, मतलब यमराज बोल रहा है बालक नचिकेता से कि आपकी आशीर्वाद में मेरा सब कुछ कल्याण हो जाए, कोई अकल्याण ना हो। हे बालक, हे ब्राह्मण बालक, तुम 3 रात्रि मेरे गृह में बिना खाए पिए बैठे हुए हो, अपेक्षा कर रहे हो मेरा। तीसरो रात्रि यदवात्सी ही गृहे में अनशन, तस्मात् देयरफॉर प्रति 3 वरान वृणीष्व। हर रात के लिए एक एक करके वर मांगो। 3 रात तो 3 वर मांगो, जो वर मांगोगे वही मिलेगा। इट्स अ वंडरफुल ऑफर। यहां पर कोई ज्यादा सा जटिल दार्शनिक विषय नहीं है। एक सरल रूप से एक स्टोरी शुरू हुआ, लेकिन ये सुनकर नचिकेता, उनको कैसे लगा, उनका रिएक्शन क्या था, ये सबसे बड़ा बात है। व्हाट वाज, पिता ने, नचिकेता ने समझ गया कि मेरा पिताजी मुझे यम की घर भेजे है। लेकिन नचिकेता जो धर्म के अनुसारी है ना, प्रेम से, धर्म की अंधा नहीं। आप देखेंगे ये जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके धर्म की लूटपाट चल रहा है। ये सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म इज वेरी थॉटफुल। देयर इज लव, देयर इज कंपैशन, प्रेम, दूसरे के बारे में चिंता, एम्पैथी। नचिकेता को भी लगा कि पिताजी गुस्से में मुझे भेज दिया। एक 8 साल की बच्चा सोच रहे हैं, और मैं पिताजी का सत्य रक्षा करने के लिए आया। लेकिन ये भी तो वास्तव है कि कोई भी पिता की अच्छा नहीं लगेगा कि अपने बेटे को यमराज की घर भेज दिया। मेरा पिताजी अब दुखी है, मुझे पता है। मेरे लिए बहुत चिंता कर रहे हैं, दुश्चिंता कर रहे हैं।
हर पिता की ऐसे ही होता है। लेकिन पिताजी समझे भी नहीं कि मैं बेटा होकर उनका धर्म रक्षा करने की कोशिश की। सत्य धर्म। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। तत्वं पूषन् अपाव्रीन् सत्य धर्माय दृष्टये। दूसरा उपनिषद से बोल रहा हूं, कठोपनिषद। ये मुंडक उपनिषद। तो नचिकेता इस बार बोल रहा है उनका उत्तर। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं माभिवदित् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। नचिकेता उत्तर दे रहे हैं। मृत्यो संबोधन। हे मृत्यु की देवता। गौतम मीन्स मेरा पिता। उनका पिताजी का नाम गौतम। यथा शांत संकल्प सुमनाः माँ अभि वीतमन्युः स्यात्। यथा जैसे शांत संकल्प मेरा पिताजी का मेंटल एंजाइटी डिप्रेशन ये सब कम कर दो। मुझे पता है उनको मन की अवस्था क्या होता है। संतान खोने का कष्ट ये इतना भार होता है जो कभी कम नहीं होता। अगर तुम देवता हो तो तुम इसे कम कर दो। सुमनाह। और मैं जब वापस जाऊंगा मेरे ऊपर मेरा पिताजी ज्यादा गुस्सा ना करे, मुझे डर लगता है, खराब लगता है। ऐसे पूछे कि नची कैसा लगा, थोड़ा स्टोरी तो बता, उधर का क्या हो हाल चाल है। मुझे डांटे मत। डांटने से मुझे बहुत खराब लगता है, डर लगता है ये अपराध। शांत संकल्प तुमनाह माँ अभी मेरे प्रति वीतमन्यु क्रोध शून्य स्यात् हो। मतलब मेरे पिताजी मेरे ऊपर गुस्सा ना करे, मुझे बहुत डर लगता है। त्वत् आपके पास से प्रशिष्टम मतलब वापस आने के बाद माँ मतलब मेरे साथ अभिवादित थोड़ा अच्छा से बात कर लिया करे। प्रतीत मुझे पहचान पाए। त्रयाणाम एतत् प्रथमम वरम वृणे। तीन वर अब बोला है। उसका पहला वर ये है। सी दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस। धार्मिक व्यक्ति मतलब ये नहीं ही विल बी इंडिफरेंट इन एवरीथिंग एल्स, ओनली ओम ओम करते रहेगा,
जैसे पिक्चर में और टीवी सीरियल में दिखाते हैं। नो, अ स्पिरिचुअल पर्सन इज मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन। ही इज एन एम्पैथेटिक सोल। सबके लिए उनकी चिंता है, सबके ख्याल रखता है। सिर्फ एक परिवार नहीं, हजारों परिवार दूसरे के लिए सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, इसके बाद उनका मन में क्या प्रतिक्रिया होगा। कल भी बोल रहे थे, अहंकार और संस्कार दो वस्तु है, दो विषय है। अहंकार खुश होता है जब दूसरे को झुका सकते हैं, कोई नीचू कर सकते हैं। और संस्कार मतलब खुद नीचू होकर दूसरे को बड़ापन देता है। ये दोनों में अंतर है। नचिकेता संस्कारी थे और हमारे यमराज भी संस्कारी थे। देखिए, एक 8 साल की बच्चे के सामने हाथ जोड़ करने में उन्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया। दैट्स द कल्चर। कि इट इज माई फॉल्ट। सनातनी बनने के लिए आपका धक होना चाहिए। व्हेन यू आर एट फॉल्ट यू शुड एक्सेप्ट इट। यस, आई हैव मेड दिस, आई एम सॉरी फॉर दैट। जिगर की जरूरत है, शांत संकल्प है। मेरे लिए मेरा पिताजी मानसिक भाव में बहुत खराब अवस्था में है। आई कैन फील इट। जिनका बेटा मर गया और पिता खुद मृत्यु के घर भेज दिया, ऐसे पिता की अवस्था क्या होता है फैमिली में। सब लोग क्या कहेगा, ये तू इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है अपने नाम यश के लिए, और खुद को बेटा को तू खुद मृत्यु के पास भेज दिया। क्या होगा तेरा ये सब। ऐसे यंत्रणा लेकर मेरा पिताजी जी रहे। बहुत दुश्चिंता हो रहा है, उनको बहुत खराब लग रहा है। हे यमराज, मेरा पिताजी का ये सब दूर कर दो। देखिए, पिताजी पहले क्या बताया था। पहले नचिकेता बोला, कस्मै माम दास्यसी। तुम मुझे किसको दे रहे हो। बार बार जब ये पूछ रहे थे, पिता उस समय बहुत काम कर रहे थे, सबको कुछ दे रहे थे सबको। एक घर में यज्ञ हो रहा है, आपके घर में थोड़ा बर्थडे पार्टी हो जाता है, तो हाउ बिजी यू आर। और इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है जहां पर सारे धन देने का मामला है। तो नचिकेता के पिता ने बताया, मृत्यु अवेत्वाद्वदामी इति। जाओ, तुम्हें मृत्यु को दे रहे हो, दे रहा हूं। बाद में नचिकेता को पहले खराब लगा। बहुनामेमि प्रथमः, बहुनामेमि मध्यमः, किम सिद्ध यमस्य कर्तव्य। मैं तो इतना खराब नहीं था, लेकिन यमराज के बहुत कुछ काम में आऊंगा, नहीं तो मेरा पिताजी क्यों मुझे भेजे। बाद में पिताजी के पास जब अनुमति लेने गया बालक नचिकेता, तो देखा कि पिताजी गुस्सा से बोल दिया, लेकिन फेंका हुआ शब्द और फेंका हुआ पत्थर को कभी वापस नहीं ला सकते। एक पुत्र होकर पिता की धर्म रक्षा की कोशिश किए, तब एक बेटा पिताजी को समझा रहे है, अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य यथा परे।
शस्यमिव पच्यते मात्यः। पिताजी देखो, ये शस्य उगते हैं, लोग काट लेता है, फिर से ये उगता है। ये चक्र है, ये जन्म मृत्यु का चक्र है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा पर। सस्यमिव मर्त्य पच्यते। सस्य के जैसे लोग मरते हैं। सस्यमिव अजायते पुनः। सस्य के जैसे ही फिर से उगते हैं। यही तो हमारे जीवन है। पिताजी को समझाया, लेकिन एक बेटे होने के नाते उनको पता है पिताजी को कितना खराब लग सकता है। जब दुख ऐसे गहरा होता है ना, कोई शब्द काम में नहीं आता। दे नीड इमीडिएट सॉल्यूशन। एंड टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सन, फर्स्ट बोर्न, पहला बार पिताजी के लिए मांगा। सी, ना कि मेरा जमीन जायदाद हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, लाइफ सिक्योर, नो। दिस इज another part, the most important part of Sanatana Hindu Dharma. When we learn to think about others, others' pain, दूसरे का कष्ट हो रहा है, मैं कुछ कर सकता हूं। दुष्ट दूसरे को कष्ट देकर नहीं, दूसरे के लिए कष्ट सहकर, ये धर्म प्रतिष्ठित है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य धनम। ईशावास्य फर्स्ट मंत्र। भीतमन्यु, हे यमराज। आप उनका गुस्सा, उनका राग, क्रोध से उनको मुक्त कर दो। क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन अपना गुस्सा को जय नहीं कर पाया। आप उनका गुस्सा, क्रोध को शांत कर दो मेरे पिताजी। वंडरफुल। सुमनाहा, और मेरा प्रति प्रसन्न हो जाए। देखिए, घर में आकर जो लोग काम धंधा करते हैं ना, पता है उनका क्या चाहत है? कि मैं जब घर में पहुंचू ना, कुछ नहीं चाहिए, मेरा स्त्री एक बार मुझसे मुस्कुरा दे, मेरा बच्चा लोग एक बार पापा पापा करके आए मुस्कुराते हुए। सिर्फ यही देखने के लिए एक बंदा सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, लोगों का अपमान सहन करते हैं, लोगों को कष्ट देना पड़ता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में है, उनका ऊपर वालों से कठोर शब्द सुनना पड़ता है। इतना झेल क्यों रहे हैं? परिवार को खुशी देखने के लिए। ये सबसे बड़ा बात है कि मैं जब घर पहुंचू, मैं देखूं कि ये मेरा घर नहीं, एक खिला हुआ बागान है। मेरा स्त्री खुश है, मेरा पुत्र खुश है, मेरा माता पिता खुश रहे। नचिकेता भी यही प्रार्थना कर रहा है कि मेरा प्रति प्रसन्न रहे। कब हमारे से गलती हो जाता है, बहुत देर से घर आते हैं, स्त्री का मुंह इतना हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम बोलते हैं अरे क्या
बोलो हनी क्या चाहिए? सॉरी, आई एम सॉरी, क्या करना पड़ेगा बोलो? तुम थोड़ा प्रसन्न रहो। हम लोग तब प्रसन्न हो सकता है जब मेरे लिए दूसरा लोग प्रसन्न रहते हैं। लोगों को, लोगों की दिल दुखा के खुशी नहीं रहना, लोगों की दिल जीत कर जो व्यक्ति खुश रहते हैं वही प्रसन्नता है। यही मेरा प्रार्थना पहला बार, एक बालक जैसे ही प्रार्थना किया। और बताया क्या? त्वत् प्रशिष्टम माँ अभिवादित प्रतीतः। जब आप मुझे वापस भेजेंगे, नचिकेता का इंटेलिजेंस देखिए कि यमराज जी मैं आपके घर में आया हूं परमानेंटली नहीं। आप जब मुझे इतना खातिरदारी कर रहे हैं, आई नो आप मुझे मेरा पिताजी के पास भेज देंगे। इन द मंत्र itself it is told, वत प्रशिष्टम मां अभिवदित प्रतीतः। जब आप मुझे वापस भेजेंगे, ऐसा हो सके कि पिताजी मुझे पहचान पाए। देखिए, हम सबको जितना भी प्रेम करें ना, आई लव यू द मोस्ट, आपके सिवा मेरा नहीं चलेगा, ओ माय गॉड मैं कैसे जीऊंगा, हाउ शुड आई लिव विदाउट यू, तुम मुझे क्यों उठा के नहीं लेके गया, भगवान क्यों तुम्हें ले गया, भगवान तो मुझे ले जा सकते थे। ऐसे शब्द हम लोग मृत्यु के बाद सुनता हूं, लगभग हर घर में। कोई चिल्ला के बोलते हैं, कोई अपने आप में अंदर अंदर में बोलते हैं। यही मृत्यु के बाद हमारा एक्सप्रेशन। लेकिन उस व्यक्ति की शरीर दाह करने के बाद या दफनाने के बाद अगर उनको ही घर में कोई कोना में दिखाई जाए पड़े ना, तो हम लोग ज्योतिषी तांत्रिक ये सब के पास जाता हूं कि ये क्या हो रहा है। वो फिर भी घर में वापस आ रहा है। फ्रिज के सामने मैं देखा, कल रात को देखा उस बरामदा में। आप कुछ कीजिए तो यज्ञ हवन चलता है। ऐसे यही जीवन है, यही वास्तव है। नचिकेता को भी पता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए रो रहे हैं, लेकिन अब मुझे दिखाई देगा ना, ही कांट एक्सेप्ट, वी कांट एक्सेप्ट एनी मृत व्यक्ति टू कम। ये हमारा एक्सेप्टेंस नहीं है। नचिकेता को पता था, इसीलिए नचिकेता ने रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा पिताजी को मुझे पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ही मस्ट रिकॉग्नाइज मी एंड एक्सेप्ट मी एज यूजुअल, और सादर ग्रहण करे। एतत्राणाम प्रथम वरम वृणे, यही मेरा पहला वर है। इतना छोटा उम्र में, इतना अल्प समय में, क्योंकि बता, नचिकेता को पता ही नहीं था कि यमराज वर देंगे। जब उन्होंने वर दे दिया, see how quickly he could take the decision. He had no dilemma in his mind. जब मन शांत होता है ना, वही ब्राह्मण है जिनका मन
शांत है युद्ध क्षेत्र में, वही ब्राह्मण है। देखिए, शांत रहना बिना ऐसे सिद्धांत लेना संभव नहीं इन दिस सिचुएशन। तो नचिकेता कोई साधारण बच्चा नहीं। उन्होंने जो वर मांगेंगे ना, उनका एक क्रम है। पहला वर क्या मांगा, विचार करके देखिए। मनुष्य का पहला चाहत, हर मनुष्य का पहला कामना वासना चाहत इस इहलोक, इस पृथ्वी में पार्थिव सुख, वर्ल्डली प्लेजर, ईच एंड एवरी वन वंस, ईच एंड एवरी वन, जागतिक सुख। हाँ, उनका मात्रा रहता है। आपके मन में जिस सुख का कामना है, चाहत है, मेरा मन में वो नहीं हो सकता। नचिकेता की इधर सुख का वस्तु क्या, कि मेरा पिताजी शांत रहे, दुश्चिंता मुक्त रहे, और मुझे पहचान पाए, मुझे थोड़ा प्रेम करे, जब ठीक है बेटा, ठीक है, चले आ, आई हग यू, आई लव यू। और नचिकेता ये मन में ले लिया कि यमराज की घर से नचिकेता वापस आएगा ही आएगा। ऐसे यमराज को बता दिया कि यमराज भी अभी बोल नहीं पाएंगे कि नहीं नहीं भाई, मृत्यु के घर से कोई वापस नहीं जाता। अरे वंडरफुल इंटेलेक्ट। एक व्यक्ति को भगवान वर दिया था, तपस्या कर रहे, भगवान दर्शन दे दिया, और भगवान पूछा, वर मांग, क्या मांगते हो तुम? तो उन्होंने वर मांगा कि मैं मेरे पोता के साथ सोने की थाली में खाना खाना चाहता, एक ही साथ ऐश्वर्य भी हुआ, पुत्र भी हुआ, पौत्र भी हुआ। तो एक ही वर में तीन कामना की पुत्र पूर्ति हो गया। ऐश्वर्य की सिवा तो आप सोने की थाली नहीं मिलेगा, आपका आयु नहीं बढ़ेगा, तो आप पोता के साथ कैसे खाएंगे? मतलब भरपूर संसार। नचिकेता की जो पहला वर की चाहत थी, वो ये जागतिक सुख की। और यमराज देखा कि ये वर देना कोई कठिन बात नहीं यमराज के लिए। इसमें क्या है, पिताजी खुश रहेगा। यमराज बोला, क्या बोले, दैट वी विल सी टुमारो।